Hare Krishna. Bhagavad Gita as it is, chapter 12, devotional service. Text 1. Arjuna Vacha एवं सतता युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमा. English translation. Arjuna inquired, which are considered to be more perfect, those who are always properly engaged in your devotional service, or those who worship the impersonal Brahm, the unmanifested? Hindi translation. अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? Text 2. श्री भगवान उवाचा मय्यावेश मनो ये मां नित्य युक्त उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्त तमामता. English translation. The Supreme Personality of Godhead said, "Those who fix their minds on my personal form and are always engaged in worshipping me with great and transcendental faith are considered by me to be most perfect." Hindi translation. श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वह मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं. Text 3. Text 3 to 4. ये त्वे अक्षरम निर्देशम व्यक्तम पर्युपासते सर्वगमा चिंतयम चा कूटस्थम अचलम ध्रुवम संनियम्य इंद्रिये ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः. English translation. But those who fully worship the unmanifested, that which lies beyond the perception of the senses, the all-pervading, inconceivable, unchanging, fixed and immovable, the impersonal conception of the absolute truth, by controlling the various senses and being equally disposed to everyone, such persons engaged in the welfare of all at last achieve me. Hindi translation. लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अनंततः मुझे प्राप्त करते हैं. Text 5. क्लेशोदिक्तरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गते दुःखं देहे वद्भिर्वाप्यते. English translation.
For those whose minds are attached to the unmanifested, impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are embodied. Hindi translation. जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। Text 6. Text 6 to 7. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन मां ध्यायन्तोपासते तेषां हम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्था मय्यावेशित चेतसाम्. English translation. But those who worship me, giving up all their activities unto me, and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service, and always meditating upon me, having fixed their minds upon me, O son of Pratha, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. Hindi translation. जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चिंतों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। Text 8. मय्ये मना आदस्त्वा मयि बुद्धिम निवेशया निवश्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशया. English translation. Just fix your mind upon me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus you will live in me always without a doubt. Hindi translation. मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। Text 9. अथा चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनंजया. English translation. My dear Arjuna, O winner of wealth, if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the regulative principles of Bhakti Yoga. In this way, develop a desire to attain me. Hindi translation. हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे करने की चाह उत्पन्न करोगे। Text 10th. अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भवा मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. English translation. If you cannot practice the regulations of Bhakti Yoga, then just try to work for me, because by working for me, you will come to the perfect stage. Hindi translation. यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि प्राप्त होगे। Text 11. अथैदप्यशक्तोऽसि कर्मुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्म फलत्यागं तथा कुरु यतात्मवान्. English translation. If, however, you are unable to work in this consciousness of me, then try to act giving up all results of your work and try to be self-situated. Hindi translation. एक मिनट.
नॉट अवेलेबल। अगर तुम मेरे लिए, भगवान कह रहे हैं, अगर तुम मेरे लिए भी कर्म नहीं कर सकते हो, मुझ में कॉन्शियसनेस रहकर भी कर्म नहीं कर सकते हो, तो अपना जो भी कर्म करते हो उसका फल त्यागो और सेल्फ सिचुएटेड आत्मस्थिर रहने का कोशिश करो। यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि सबसे पहले तो भक्ति योग करो। भक्ति योग नहीं कर पा रहे हो तो आप भक्ति के विधि विधानों का पालन कर रहे हो, वो भी नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरे लिए कर्म करो, वो भी नहीं कर पा रहे हो तो कर्म करो, फल को खुद मत भोगो, उसको भगवान को दो, मतलब निष्काम कर्म बता रहे हैं भगवान। टेक्स्ट 12। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास यज्ञाना ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागाच्छान्तिर अनंतरम। इंग्लिश ट्रांसलेशन। If you cannot take to this practice, then engage yourself in the cultivation of knowledge. Better than knowledge, however, is meditation, and better than meditation is renunciation of the fruits of action. For by such renunciation, one can attain peace of mind. हिंदी ट्रांसलेशन। दिस वन। अब आगे भगवान कह रहे हैं अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो आप नॉलेज गेन करो। ठीक है, जितनी अच्छी नॉलेज आप गेन कर पाओगे, जितना अच्छा ज्ञान, जितनी ज्यादा ज्ञान आप गेन कर पाओगे, उसके बाद आप मेडिटेशन करो। फिर मेडिटेशन से बेटर है कि आप रिनंसिएशन करो, फ्रूट ऑफ एक्शन, मतलब जो भी कर्म कर रहे हो, मतलब इन शॉर्ट भगवान ये कह रहे हैं सबसे बेस्ट है आप भक्ति योग करो। भक्ति नहीं कर पा रहे हो तो उनके विधि विधानों का पालन करो, वो भी नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरे लिए कर्म करो, वो भी नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने कर्म करो और कर्म का फल मुझे दो, वो भी नहीं कर पा रहे हो तो आप पहले ज्ञान करो, ज्ञान से आप फिर मुझ पे ध्यान करो। ठीक है, और उस ध्यान से क्या होगा कि आप जो भी कर्म करोगे तो आप उससे कर्म करने का ही मन नहीं करेगा। कर्म कौन से? जो अपने लिए जो सेंस एंजॉयमेंट वाले कर्म, जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन वाले कर्म है, वो कर्म नहीं करोगे। उससे क्या होगा, जब वो नहीं करोगे, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करोगे तो आप शांति में रहोगे। ठीक है, हमें कर्म करने हैं और हमें ऐसे कर्म करने हैं जो भगवान के लिए। जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो हम सेंस ग्रेटिफिकेशन खुद ही हमारा ऑटोमेटिकली छूट जाता है, अलग से हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें मूवी देखने का शौक है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, भगवान के लेक्चर सुन सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं। उससे क्या होगा, हमने भगवान के लिए भी कर्म कर दिया और जो कर्म लग सकता था हमारा मूवी देखने से या किसी और चीज से, वो भी हमारा बच जाएगा, उससे हम रिनंसिएट भी हो जाएंगे। ठीक है, सोने का शौक है तो ये सोच के सो कि हमें सुबह जल्दी उठना है, सुबह हमें अपनी चैंटिंग कंप्लीट करनी है, तो भगवान, ये तो पूरी भक्ति हो गई, जल्दी उठना, और सुबह अगर आप जाप कर रहे हो तो, और रिनंसिएशन भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना चाहिए। नाउ टेक्स्ट 13 to 14। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एवचा निर्ममो निरंकारा समादुका सुखा क्षमी संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मया अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता समे प्रिया। इंग्लिश ट्रांसलेशन। One who is not envious but is a kind friend to all living entities, who does not think himself a proprietor and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, always satisfied, self-controlled, and engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence fixed on me, such a devotee of mine is very dear to me. हिंदी ट्रांसलेशन। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, और जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। टेक्स्ट 15।
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षाम ऋषभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रिया। इंग्लिश ट्रांसलेशन। He by whom no one is put into difficulty and who is not disturbed by anyone, who is equipoised in happiness and distress, fear and anxiety, is very dear to me. हिंदी ट्रांसलेशन। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। टेक्स्ट 16। अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्ता समे प्रिया। इंग्लिश ट्रांसलेशन। My devotee who is not dependent on the ordinary course of activities, who is pure, expert without cares, free from all pains, and not striving for some result, is very dear to me. हिंदी ट्रांसलेशन। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। टेक्स्ट 17। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभा परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिया। इंग्लिश ट्रांसलेशन। One who neither rejoices nor grieves, who neither laments nor desires, and who renounces both auspiciousness and inauspicious things, such a devotee is very dear to me. हिंदी ट्रांसलेशन। जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, और जो ना पछताता है, ना इच्छा करता है तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। नाउ सी द स्टैंडर्ड। हम अभी कहीं पर भी लाई नहीं कर रहे हैं। सी द स्टैंडर्ड्स टू बी अ डिवोटी। टेक्स्ट 18। टेक्स्ट 18 to 19। समाशत्रो च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीत्र उष्ण सुखा दुखेषु समासंगा विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरा। इंग्लिश ट्रांसलेशन। One who is equal to friends and enemies, who is equipoised in honor and dishonor, heat and cold, happiness and distress, fame and infamy, who is always free from contaminating association, always silent and satisfied with anything, who does not care for any residence, who is fixed in knowledge and who is engaged in devotional service, such a person is very dear to me. यस, हम कहीं पर भी नहीं है, बट इसका मतलब डिमोटिवेटिंग नहीं है, ये एनकरेजिंग है कि हमें ऐसा बनना है। यस। हिंदी ट्रांसलेशन। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। टेक्स्ट 20। ये तु धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा नाम मत्परमा भक्तास्तेति मे प्रिया। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Those who follow this imperishable path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal, are very, very dear to me. हिंदी ट्रांसलेशन।
जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, कार्तिक मास की जय, कार्तिक व्रत की जय, गोपाष्टमी की जय, गो माता की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।